یہ فیریئر ہال کراچی ہے۔ جب آپ کراچی کے مشہور 5 اسٹار میرٹ ہوٹل سے گزرتے ہوئے سی ویو کی طرف جاتے ہیں تو اس کے بالکل سامنے آپ کو گوتھک طرز کی ایک محل نما عمارت نظر آتی ہے۔ اس کو چیف کمشنر بارٹل فیریئر کی یاد میں بنایا گیا تھا، جس کو فیریئر ہال کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ فیریئر ہال کو یادگار مارک لینڈ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ یہ محل نما خوبصورت عمارت ونسن گاتھک اور سرکونک طرز کی ہے۔ اس خوبصورت طرز تعمیر کو دیکھ کر ہندوستان کی مشہور بمبئی کی کئی عمارتیں اس نقشے پہ بنائی گئیں، کیونکہ یہ عمارت بننے کے بعد اتنی پرکشش نظر آنے لگی، اس طرز کی عمارتیں بنانے کا رواج چل نکلا۔ یہی سبب ہے کہ سندھ کے کمشنروں سر چارلس پررچرڈ اور ایوان جیمز کا پینٹ ہاؤس بھی رہا۔ جی جناب، اس وقت میں کھڑا ہوں فیریئر ہال، کراچی کا یہ فیریئر ہال ہے جہاں 150 سال سے بھی پرانی یہ عمارت ہے اور 1865 میں تیار ہو گئی تھی، اور یہ جو زمین جو ڈونیٹ کی تھی وہ کی تھی سیٹ دھول دھنشا نے، اور یہاں پر سر چارلس پر رچرڈ اور ایوان جیمز کا یہ پینٹ ہاؤس بھی رہا ہے۔ 1863 میں اس کا بنیاد رکھا گیا اور 1865 میں یہ عمارت بن کر تیار ہوئی۔ اس عمارت کا ڈیزائن مختلف انجینئرز نے بنایا۔ 12 میں سے کلیئر ویکسن کا یہ نقشہ پاس کیا گیا۔ اس عمارت پر 1,80,000 روپے لاگت آئی، جس میں 22,500 روپے کراچی کے شہریوں نے چندہ کیا۔ حکومت نے 10,000 اور کراچی میونسپل کمیٹی نے 1,47,500 روپے دیے۔ اس دور میں جو بنا تھا 1,80,000 کا بنا تھا، تو یہ آپ دیکھیں یہ ایک ہیریٹیج ایک ورثہ ہے ہمارا، اور یہ فیریئر ہال جو ہے 1,80,000 میں بنا، تب تو یہ بہت بڑی بات ہوگی، اور یہ ہے میرٹ ہوٹل کے بالکل سامنے۔ تو یہ خوبصورت جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں عمارت، اور یہ ہے میرٹ ہوٹل۔ فیریئر ہال کی چھت پر پکی ہوئی مٹی کے کھپریل اور نالی دار لوہا لگایا گیا۔ اس عمارت پر ایک مینار بھی تعمیر کیا گیا، جس پر دھات کی تہ چڑھائی گئی۔ فیریئر ہال 70 فٹ لمبا، 35 فٹ چوڑا اور 75 فٹ اونچا ہے۔ بارٹل فیریئر ان کے نام سے یہ بنایا گیا تھا، اور 1965 میں یہ بن کر تعمیر ہوا تھا۔ اس کا جو ہال ہے وہ 70 فٹ لمبا ہے اور 35 فٹ چوڑا ہے، اور اس کی جو لمبائی ہے وہ 70 فٹ تک ہے، اور اس میں جو مینار ہے اس میں ساگوان کی لکڑی کا استعمال ہوا ہے۔ یہ خوبصورت ہال صدر ٹاؤن سول لائن کے قریب ہے۔ اس کے سامنے عبداللہ ہارون روڈ، جو کسی دور میں وکٹوریا روڈ کہلاتا تھا، اور اس کے پیچھے فاطمہ جناح روڈ ہے، اور انگریزوں کے دور کا سندھ کلب بھی۔ قائد اعظم ہاؤس، سابق امریکی سفارت خانہ، ہوٹل میریٹ،
कराची के ऐवान सदर सर अब्दुल्ला हारून की रिहाइश गाह और कराची की दीगर मशहूर और अहम इमारतें हैं और ये कराची के मरकज़ में वाक़ है। फेरियर हाल को कराची का पहला अवामी मरकज़ कहा जाता है। 150 साल से आवाम के लिए खोला गया और आज भी कराची के शहरी और दूर दराज के लोग यहाँ पर फैमिली के साथ आते हैं। सिंध में 1851 में एक भी बैराज, धर्मशाला, डाकखाना, पक्की सड़क, मुसाफिर खाना, अस्पताल, स्कूल और अदालत नहीं थे। इस तारीखी हाल में वेनिस गोथिक और इंडियन तर्ज तामीर की झलक नज़र आती है। ये इमारत शहरियों के लिए बनाई गई थी, लिहाजा इसको टाउन हाल कहा जाता है। हाल के ऊपर चर्च से मुशाबा एक मीनार तामीर किया गया है, जिस पर बरतानवी तख्त की निशानी के तौर पर एक लंबी आहिनी सलाख पर बादनुमा लगाया गया है। फेरियर हाल का शुमार कराची की खूबसूरत तरीन तारीखी इमारतों में होता है। कहते हैं कि इस इमारत से पहले कराची में कोई इमारत नहीं थी, न थाना था, न स्कूल, न अस्पताल। ये पहली इमारत है जिसके बनने के बाद कराची निगाहों का मरकज़ बना और शहर फूलने फलने लगा। इस जगह जहां फेरियर हाउस की तामीर की गई, ये ज़मीन सेठ धूल दनशाह ने डोनेट की, मगर कुछ लोगों का ख्याल है कि कराची की इंतज़ामिया ने पाकिस्तानी 2000 रुपये में ख़रीदी थी। और दो बातें हैं, कहते हैं कि इससे ये जो ज़मीन थी वो दिनशाह की थी और उन्होंने डोनेट की थी, और कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो ज़मीन 2000 रुपये बरतानवी रुपीस में 2000 रुपये में ये ख़रीद कर ली गई थी। और ये जो बार्टल फेरियर हैं जो उनके नाम से ये बनाई गई थी। 1865 में जब ये इमारत बनकर तैयार हुई तो इस पर कुल लागत 1,80,000 रुपये आई। अंग्रेज़ों के दौर में ये फेरियर हाल टाउन हाल हुआ करता था। बाद में हुकूमत पाकिस्तान ने इसको अजाइब घर बनाया। अंग्रेज़ इसको कराची का बहुत बड़ा मालियाती और मुआशी मरकज़ बनाने के ख्वाह थे। फेरियर हाल एक हेरिटेज है, बल्कि एक तफरीह गाह है जिसमें बागीचे हैं, दरख्त और मुख्तलिफ रंगों के फूलों की क्यारियाँ और पौधे हैं। अंग्रेज़ों के दौर में यहाँ क्वीन लॉन और किंग लॉन सब्ज़ाज़ार थे, जिसमें मलका विक्टोरिया और सेविन के बड़े मुजस्समे लगे हुए थे, जिसको आज़ादी के बाद जिन्नाह गार्डन का नाम दिया गया। सिंधी ज़बान तहरीरी शक्ल में मौजूद नहीं थी। पाटल फेरियर ने सिंधी ज़बान की ग्रामर और डिक्शनरी बनाई। वो देवनागरी से मुतासिर थे, जबकि रिचर्ड बेल्टन अरबी की शमूलियत चाहते थे।
फेरियर ने इसको मंजूरी के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया भेजा, जहां अरबी रस्मुल खत के हक में फैसला आ गया। दूसरा बार्टल जो फेरियर है, उसकी सबसे बड़ी जो बात है कि वो ये है कि उसने सिंधी ज़बान को हरफ तहजीह दी थी। तो ये फेरियर हॉल जो है हमारा बहुत बड़ा हेरिटेज है। फेरियर हॉल की तामीर में पेवर सिंध का मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, सवाई छत के लोहे के जो लंदन से लाया गया। फेरियर हॉल में इस्तेमाल होने वाला सुर्ख, सफ़ेद और भूरा पत्थर जामशोरो, झुंगशाई, ठट्ठा और कोटड़ी के करीब बोलाहड़ी से लाया गया। तो और सबसे बेहतरीन जो बात आपको बताता हुआ चलूँ कि जिस दौर में कलोड़ा सिंध पर हुकूमत करते थे, मीर हुकूमत करते थे, तो उनकी इमारतों का पत्थर राजस्थान से आता था, लेकिन इसका जो पत्थर इस्तेमाल हुआ है वो जामशोरो, बोलाहड़ी जो अंग्रेज़ों ने पुल बनाई है कोटड़ी के करीब, वहाँ से, और झुंगशाही ठट्ठा से पत्थर लाया गया, भूरा, वाइट और ये सुर्ख। फेरियर हाल बरतानिया के नौ आबादियाती दौर की याद दिलाता है। ये हाल साबिक कमिश्नर हेनरी बार्टल फेरियर की सिंध में खिदमत के एतराफ़ में यादगार के तौर पर बनाया गया था। हेनरी बार्टल फेयर जब सिंध के चीफ कमिश्नर बने तो इनकी उम्र 35 बरस थी। फेरियर जो जूनियर ब्यूरोक्रेट थे, मगर वायसराय ने तमाम सीनियर को नज़रअंदाज करके बार्टल फेरियर को सिंध का चीफ कमिश्नर बनाया। ताहम उन्होंने अपनी ज़हानत और काबिलियत से ये साबित किया वो इस ओहदे के अहल हैं। फेरियर के दौर में कराची में पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल कायम हुआ। कराची की मुआशरती, तिजारती, तालीमी सरगर्मियों में तरक्की हुई। मौजूदा खालिद दिना हाल के मकाम पर नीटो जनरल लाइब्रेरी कायम हुई। केमाड़ी से लेकर कोटली तक रेलवे लाइन बिछाई गई। कराची की बंदरगाह के लिए बेमिसाल खिदमत अंजाम दी। कहीं भी ना डाकखाना था, ना थाना था, कुछ भी नहीं था। यहाँ से चीज़ें बम्बई जाती थी, वहाँ से फिर यहाँ पर आती थी। पहली इमारत ये बनी थी, उसके बाद कराची टाउन हो गया, यानी कि फिर डाकखाना भी बना, बंदरगाह भी बना, बहुत सी चीज़ें बनी। यानी कि कराची को शहर बनाने में सबसे पहली ये इमारत है। उसके बाद ये आप करोड़ों में आबादी देख रहे हैं कराची की। फेरियर हाल की तारीखी इमारत का इफ्तिताह 10 अक्टूबर 1965 को उस वक्त के कमिश्नर सैमुअल मैन्सफील्ड ने किया। अब ये फेरियर हाल एक तफरीगाह है। ये मंतक समझ में नहीं आई कि हफ्ता और इतवार हाल बंद होता है, इसलिए हाल के अंदर न जा सके, और हफ्ता इतवार को भी विजिटर की बहुत बड़ी तादाद सैर को आती है। हाल के पहले हिस्से में पब्लिक लाइब्रेरी और मुमताज़ मुसव्विर सैयद मोहम्मद सादकेन अमरोही की फन पारों की गैलरी कायम है। 1887 में बंजामन हंज नामी एक यहूदी बाशिंदे ने फेरियर हाल के इतराफ बाग लगाया था। फेरियर हाल के सामने और पिछले हिस्से में मलका विक्टोरिया और एडवर्ड हफ्तम के मरमरी मुजस्समे नस्ब थे। मलका विक्टोरिया के एक हाथ में असाए सुल्तान और दूसरे में कस लिए था, जो अब मौजूद नहीं है। फेरियर हॉल कराची जो पाकिस्तान की वाहिद तफरीगाह है जहां पर सबसे ज़्यादा टिकटॉकर टिकटॉक बनाते हैं। तफरीगाह 1.5 सदी से शहरियों की सैर व तफरीह का मरकज़ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता इसकी निशानियां ख़त्म होती जा रही हैं। इस फेरियर हॉल की छत का रंग सुर्ख लाल था, जो सब्ज़ कर दिया गया है। फेरियर के चीफ कमिश्नर बनने के बाद शहरी निज़ाम कायम किया गया। उन्होंने पानी के 5 कुएं खुदवाए, निकासी आब का निज़ाम शुरू किया। ये वो फुहारा है जिस फुहारे पर सबसे ऊपर एक खूबसूरत मलका का मुजस्समा था। मगरबी तर्ज के सुर्ख लिबास में खड़ी थी, जबकि इसके नीचे बच्चे बच्चियां हाथों में मशल उठाए हुए थे। मलका विक्टोरिया का मुजस्समा 1906 में नस्ब किया गया था, जबकि एडवर्ड स्योन का मुजस्समा 1916 में नस्ब किया गया था। इन दोनों मुजस्समों को 1961 में हटा दिया गया था। जी जनाब, ये वो इलाका है हम जहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर जो मलका विक्टोरिया और स्योन के बड़े मुजस्समे लगे हुए थे, जो अब नहीं है, और यहाँ पर मूर्तियाँ आपको नज़र आ रही होंगी।
لیکن यहाँ पर बहुत बड़े मुजस्मे लगे हुए थे मलका विक्टोरिया के और सेवन के जो अपने मलकाई विक्टोरिया का मुजस्मा ऐसे था जैसे वो पत्थर के चबूतरे पर खड़ी हैं, उसके नीचे दोनों इतराफ तांबे के शेर बने हुए थे। बरतानवी दौर के तिरस की इस बग्गी में 300 रुपये में लोग फेरियर हाल के मरकजी दरवाजे से फेरियर हाल के इतराफ फातिमा जिना रोड से अब्दुल्ला हारून रोड तक की सैर करते हैं। यह बग्गी भी फेरियर हाल की खूबसूरती में इजाफा करती है।